Yes. Sir, yesterday you were going to tell a numerical of the eddy currents, but एडी करंट न्यूमेरिकल, एडी करंट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है. okay sir, okay. सर एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन वाला तो बताया था. Concept I have given you, and when I will give you the worksheet, in that you will be getting some questions, and after that we can discuss it. जो कंसेप्ट बताया था उसको यूज करोगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन है. Now Please send the answers of the last worksheet. that was of which chapter? So what? चैप्टर बताओ, कौन से चैप्टर का आंसर किया? दैट वाज आई थिंक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर ही था वो. Sir, so I want to ask one question, that if the current increases from 0 to 2 ampere and then it reverses in direction, then what will be the del I? डेल्टा आई विल बी 4 एम्पियर. अगर 2 एम्पियर की करंट रिवर्स हो जाएगी, देन डेल्टा आई विल बी 4 एम्पियर. So then what about the pathway of 0 to 2 ampere? पार्डन, व्हाट विल बी? मतलब कि वो 0 to 2 ampere भी तो हो रही है ना, तो उसका क्या करेंगे? नहीं, ये थोड़ी ना बोलेगा 0 to 2 एम्पियर एंड रिवर्सेस. वो बोलेगा करंट ऑफ 2 एम्पियर रिवर्सेस इन डायरेक्शन. अच्छा, डायरेक्टली है बोलेगा. हाँ, वो ऐसे होगा कि 2 से 0 जाएगी, फिर 0 से 2 वापस आएगी, तो इट विल बी 4 एम्पियर. ओके सर. नाउ वी आर टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, AC circuits. AC circuits. Now here we'll be reading about the AC current, and AC current continuously changes in magnitude and reverses in direction. This is your AC current, which will be continuously changing in magnitude. जो DC current थी, that was constant in magnitude, that was changing only during the time current was switched on or current was switched off. At that time only the current was changing, but this AC current will be continuously changing. Now here, rotation of coil in magnetic field, heading है rotation of coil in magnetic field alternating induced EMF. ये और कर लो, और EMF induced in generator. अगर वो तुमसे ये बोले how much EMF is induced due to rotation of coil in magnetic field, हमने कई बार बताया कि when the coil will rotate in magnetic field, flux will change and EMF will be induced. So that EMF we have to find. और alternating induced EMF के लिए कहे फॉर्मूला फाइंड करो, या फिर जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होगा उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करो. AC जनरेटर जो है, बल्कि इसको कर लो EMF इंड्यूस्ड इन AC जनरेटर. AC जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होगा, for that we will derive the expression. So heading everybody note it down. Now
we have a coil which is rotating in uniform magnetic field. Suppose this is the uniform magnetic field B, and in this magnetic field a coil is being rotated. This is the rectangular coil which is rotated in uniform magnetic field PQ RS, and as this is the coil, the angle will be taken with normal to the coil. So normal to the coil, coil के केस में, एरिया के केस में हम नॉर्मल से एंगल लेते हैं. So the normal of the coil is making angle theta with the field. This is the axis of the coil, that is normal to plane of coil. So normal to the plane of the coil is making an angle theta. So ये coil जो है, this is rotating in magnetic field, and when the coil will rotate in magnetic field, flux linked with the coil will change. जैसे इस पोजीशन में coil is in this position, zero flux is linked. रोटेट होके इस पोजीशन में आ जाए, मैक्सिमम फ्लक्स इज लिंक्ड. फिर इस पोजीशन में आ जाए, जीरो फ्लक्स. सो द कॉइल व्हेन रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स विल चेंज, एंड इफ फ्लक्स चेंजेस, EMF will be induced. So write down, consider a coil of n number of turns comma area A, area capital A, is situated in uniform magnetic field B such that at any instant axis of the coil, at any instant axis of the coil in bracket normal to the plane of the coil, bracket close, is making an angle theta with the magnetic field. So this coil, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, situated in this magnetic field, and at any instant normal to the plane of the coil is making an angle theta. Then flux linked with the coil. At this time, what is the flux linked with the coil? जो फ्लक्स लिंक होगा B इंटू A इंटू कॉस थीटा. फ्लक्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, BA cos थीटा, बट द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, सो NBA cos थीटा, n टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स. द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, so total flux will be NBA cos theta. So किसी इंस्टेंट पे when the normal is making an angle theta, then the flux linked with the coil will be NBA cos theta, that you have read in previous chapter many times.
next line, as the coil rotates in magnetic field, as the coil rotates in magnetic field, comma, flux linked with the coil continuously changes. Flux linked with the coil continuously changes, and an EMF is induced which is given by which is given by Faraday's law. ये जो क्वाइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट करेगी तो फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा, जीरो देन मैक्सिमम देन जीरो देन मैक्सिमम, and whenever flux changes EMF is induced according to Faraday's law, and the magnitude, the value of EMF is given by Faraday's law, E is equal to minus d phi by dt. तो E is equal to minus d by dt ऑफ फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो NBA cos ओमेगा t. यहां पर एक लाइन बढ़ा लो जरा पर इस जगह पर, इसके बाद दिस फ्लक्स विल बी NBA cos ओमेगा टी, और इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो थीटा इज ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल. ये इसके साथ का एक्सप्लेनेशन है. ये जो थीटा है ये तुमने क्लास 11 में पढ़ा था. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हो. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल, एंड इफ रिक्वायर्ड ओमेगा विल बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, where t is the time period, or you can write omega is 2 pi f, where f is frequency of revolution. This all you have read in class 11. तो हमने थीटा का रिप्लेसमेंट ओमेगा टी से कर दिया है, और स्मॉल टी जो है वो टाइम है, जिस टाइम पे तुम्हें ईएमएफ चाहिए. अभी चाहिए कि 2 सेकंड के बाद चाहिए कि 15 सेकंड के बाद चाहिए, दैट विल बी स्मॉल टी. और ये कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी जो यहाँ फॉर्मूले में है, ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है जो कि फिक्स वैल्यू होगी. सो वी आर अगेन कमिंग टू द पॉइंट. The coil at any instant is making an angle theta with the field. जो फ्लक्स लिंक होगा वो NBA cos थीटा, थीटा का रिप्लेसमेंट लोगे ओमेगा टी से, और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, NBA कांस्टेंट d by dt of cos omega t. Yes, anyone can tell me the differentiation of cos omega t. Cos omega minus sin omega t. How much? minus omega Minus omega sin omega. yes, minus omega sin omega t minus NBA. और cos ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos का होता है माइनस साइन,
माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को करोगे तो ओमेगा कोफिशिएंट में आ जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी. पहले इसको एक फंक्शन लो ओमेगा टी को, तो कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ओमेगा और आ जाएगा. सो दिस कम्स टू बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? ये स्टेप तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी जो होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. दिस इज द फॉर्मूला. बाकी रेस्ट एनीवेयर इफ यू हैव प्रॉब्लम टेल मी. नाउ ये जो साइन ओमेगा टी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो ये ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, एंगुलर स्पीड फिक्स है. अगर कॉइल का ओरिएंटेशन इस तरह हो कि साइन ओमेगा टी 1 आ जाए तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, और वो मैक्सिमम आएगा एन बी ए ओमेगा. तो इस एन बी ए ओमेगा को हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसको ई नॉट से डिनोट करोगे, एंड दैट इज पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ क्वाइल जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ई नॉट होगा, दैट इज एन बी ए ओमेगा. So now this thing will be written as E is equal to E naught, इस पूरे की जगह E naught साइन ओमेगा टी. यहां पे E जो है इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. क्योंकि होगा क्या, एज द क्वाइल विल बी रोटेटिंग, जैसे जैसे क्वाइल रोटेट होती रहेगी ईएमएफ चेंज होता रहेगा. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट इज दिस ई. और ये ई नॉट जो है ये पीक ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड है ड्यूरिंग रोटेशन, ये फिक्स होगा. और टाइम चेंज होता रहेगा, किस टाइम पे निकालना है ईएमएफ. E is instantaneous EMF, E naught is peak EMF, omega angular speed of rotation of coil, angular speed of rotation of coil, and T is the time at which we are finding the EMF. T is the time at which we are finding the EMF. तो अगर तुम्हें बाई चांस डिराइव करने को कहे कि हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां तक तुम्हें डिराइव करना होगा. नाउ फर्दर the same formula will be written in this form also. E is equal to E naught sine
ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दोगे और ये स्मॉल टी। कैपिटल टी यहां पर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ क्वाइल। क्वाइल एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लेगा, एंड दैट विल बी द फिक्स वैल्यू। और स्मॉल टी जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये क्वाइल मान लो ये स्टार्टिंग है क्वाइल की, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ये 90 रोटेशन, फिर 90 रोटेशन, फिर 90 और फिर 90, ये पूरा एक रोटेशन में जितना टाइम लगेगा दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल। दिस फॉर्मूला कैन फर्दर बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, E is equal to E naught sin 2 pi ft, where f here is frequency of rotation of the coil। क्वाइल के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी जो है 1/t होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। So these are different forms of expression for induced EMF due to rotation of the coil। Now इस EMF induce के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ वन क्वेश्चन इज, इन विच ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन विच ओरिएंटेशन ऑफ क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड द EMF विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग रोटेशन। क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, उसकी क्या ओरिएंटेशन होगी जब EMF इंड्यूस मैक्सिमम होगा? सर पैरेलल होगी, पैरेलल टू फील्ड। देखो मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा, दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री, और 90 थीटा तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी क्वाइल।